So I think you can see the screen. Can you? Yes, sir, it's visible. Yes, sir. Okay. So once again, I am just going to give an idea about desirable properties. If you have gone through, if you have any questions, you can interrupt me and ask the question. So the first thing is the normal boiling point of the refrigerant should be low. The second is evaporating and condensing pressure. Both these evaporating and condensing pressure should be positive and low. Positive means they should be above the atmospheric pressure. So whether it is PE or whether it is PC, it should be greater than atmospheric pressure, but not too high also. Critical temperature and pressure. For high COP, the critical temperature should be very high, the critical pressure should be low, so as to result in a low condensing pressure. So it's clear, critical temperature should be high, but critical pressure should be low. Then freezing point. The freezing point of the refrigerant should be lower than the evaporating temperature, that is the रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर. तो जिस टेम्परेचर पे हमें रेफ्रिजरेशन करना है, मान लीजिए वो -20 है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर उससे लो होना चाहिए, लेट अस से -40, -50 और -60 like that. Then latent heat of vaporization. This is one of the most important property. Latent heat of vaporization should be as large as possible so as to reduce the weight of the refrigerant to be circulated in the system. जितना ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा उतना कम रेफ्रिजरेंट का वेट सर्कुलेट करना पड़ेगा या मास सर्कुलेट करना पड़ेगा. Volume of the suction vapor. The volume of suction vapor required per ton of refrigeration is an indication of the size of the compressor. The volume of suction vapor, it's not volume, it's vapor, therefore should be low. If the volume of suction vapor is low, the the size of the compressor required would be small. If it is large, then the compressor size would be large. The next is the coefficient of performance and power required per TR. You know, coefficient of performance is a term which represents the ratio of specific refrigerating effect to specific work of compressor. Okay, so it should be naturally high. We require that there should be more cooling effect per unit of the compressor work. Oh, okay, and if you see it in a reciprocal manner, power required per TR, it becomes mass flow rate of the refrigerant into WC divided by mass flow rate of the refrigerant into QE. So that means now the power required per TR should be low. Okay, COP should be high means power required should be low. Then flammability, the refrigerant should not be flammable. Toxicity, the refrigerant should not be toxic. For example, ammonia is toxic. Action of refrigerant with water. In general, moisture should not be allowed to enter refrigeration systems. Quantity of water present in refrigerant should not be more than the quantity which can be easily dissolved. Otherwise, there is a danger of ice formation and consequent choking of expansion valve or capillary tube used for throttling in the system. So that means if water is there and it is not properly dissolved in the refrigerant, okay, then it can freeze in the capillary tube or the expansion device and it will choke the system. Then action with the oil. Uh, Is refrigerant contains water molecule? no. Actually, suppose by some means the water goes into the system, because when you are charging the refrigerant, then air also goes into the system. So along with the air, the moisture may go into the system. If it happens actually, in that particular case, it should be actually easily dissolved in the refrigerant. If it is not dissolving in the refrigerant, then it can freeze actually. Okay. Otherwise, there should not be any Okay, sir. water in the refrigerant or air in the refrigerant. Okay, both are actually creating harmful effects in the system. Action with oil. The solubility behavior of a refrigerant in mineral oil may be classified as
immiscible, miscible, or partially miscible. So the best one is the miscible or immiscible. So if it is immiscible, what we can do, we can use a separator after the compressor, and from this separator the oil will return to the compressor crankcase. Okay, and if it is miscible, then there is no problem because the refrigerant and the oil will move all along in the circuit, and the oil will be returned back to the compressor. But if it is partially miscible, that creates a problem, and it is a biggest problem for R22. Okay, it's the refrigerant in this particular case. It's difficult to handle the oil actually. So this table shows, I think this you have seen in the earlier video also. So this is R22 and R114. So the problem lies here, whereas for these particular refrigerant there is no problem, and also for these refrigerant or this refrigerant also we don't have any problem. Okay, so basically the problem lies with R22. For ammonia, CO2, 134A, there is no problem because their oil is immiscible, and for the left hand side refrigerant, they are completely miscible, so they also don't create any problem. Action with the material of construction. Okay, the refrigerant should not react with the material of construction, and for example ammonia reacts with copper, so we cannot use copper tubing with ammonia, rather we have to go for steel piping with ammonia. Okay, and fluorocarbons do not react with copper. So mostly if we are using CFCs, HFCs or HCFCs, then we are using the copper tubing. If we are using ammonia, then we will go for steel piping, and it becomes very difficult to use steel piping because to bend those pipes, it is very difficult. Steel can't be bent easily actually, but if you know, the copper has a very good conductive ductility. Okay, so it can be bent easily. The physical requirements are dielectric strength. The refrigerant should have high dielectric strength. The refrigerant should be good electrical insulator. One thing, high thermal conductivity. Why high thermal conductivity? Because thermal conductivity is related to the heat transfer property. So if it is high, then the heat transfer will be good both in evaporator as well as in the condenser. Then comes the viscosity. Viscosity should be low for high heat transfer coefficient. Probably this Professor Mishra will teach you when he will take on the convection part. Here the viscosity comes into picture. Viscosity is basically related to the Reynolds number. Okay, so it's parameter which is related to the flow of the refrigerant. Okay, so another thing that I would like to highlight here is, if the viscosity of the refrigerant is high, okay, more viscous a liquid is, in that particular case the work required in the compressor will be more, because larger the viscosity, larger will be the friction between the layers actually, so there will be more work to be done to compress the refrigerant. Leak tendency, the leak tendency should be low, also the detection of leaks should be easy, then cost of refrigerant should be low. Then comes ozone depletion potential. Ozone depletion potential is defined as an index that indicates the ability of refrigerants and other chemicals to destroy stratospheric ozone molecules based on the value of 1 for or 11. Okay, so you know that the chlorine in the refrigerant reacts with the ozone, and it depletes it to O2. So that is how the ozone layer is depleted. Okay, and this is the chemical reaction. Suppose this is the refrigerant, this is R12. Okay, in the presence of sunlight, this refrigerant will be broken into CCl2F2 and chlorine. The chlorine will react with O3 in the presence of sunlight, and we will get O2 and ClO. So basically the ozone is depleted by this particular reaction. So the ozone is depleted to O2. A single atom of chlorine released from CFC reacts, taking out around 1 lakh O3 molecules. That is why even a small concentration of CFC
also becomes important. And these are the ODP values. For R11 it is 1, R12 it is 0.86, R22 it is 0.055, R115 it is 0.4. Then comes yes, there is one more thing. Ozone layer filters the ultraviolet rays from the sunlight and avoids its entry into the Earth's atmosphere. These rays can cause skin cancer. So that is why we don't want that ozone layer should be depleted. The ozone depletion potential of the refrigerant should be 0. So it should not have any ozone depletion potential. And nowadays, the earlier it's not a ozone hole basically. It is basically the thinning of the ozone layer, which used to take place earlier. Now, since we are not using any chlorinated refrigerants, so now this thinning of the ozone layer has stopped, and the new layer has been forming over a period of time. The next is the global warming potential. Global warming potential of the refrigerant should also be negligible. Okay, it should not have a high value, and the base for measuring the global warming potential is CO2, for which the value of global warming potential is 1. All the refrigerants are compared with CO2 in terms of global warming potential. So it should have a perfect refrigerant or a desirable refrigerant. The desirable property in terms, it's moreover it's not a property actually. Okay, global warming potential or ozone depletion potential, it's not a property actually. So you should be careful. Okay, so global warming potential should be less than, normally we say less than 200. Okay, if its value is even below, then that value means if it is even less than 10 global warming potential, it's even better actually, because uh, it will not harm the environment. Okay, so there are certain new refrigerants which are coming, for which the global warming potential is very low, and they are known as HFOs, hydrofluoroolefins. Okay, hydrofluoroolefins. So for them, the value of uh, global warming potential is less than 10. Okay, now I hope this part is clear about the properties of the refrigerant. If you have any questions, you can ask. Sir, I was having a query. You are having a I'm having a query actually regarding you said now that if the latent heat of vaporization mm-hmm. directly affects the weight of refrigerant that is being Yes, used in the system. correct. So how is that so? How is that so? Okay, all right. So what I will do, can you see here? It's a blank slide. Okay, so let me draw the cycle actually. This is the vapor compression cycle on a pH chart. Okay. For latent heat of vaporization is from here to here actually. Okay, this is the latent heat process. Okay, there is no sensible heat addition. It is basically only the latent heat addition, and that also partial latent heat addition, because here you have liquid plus vapor. So it's a partial latent heat addition to the refrigerant. Okay. Now suppose we have a fixed quantity of the cooling effect. Suppose I want 1 TR of the cooling effect, which is equal to 3.5167 kilowatt. Now this is state point 1, this is state point 4. Okay. Now this QE is given by the formula mass flow rate of the refrigerant into delta H across evaporator. Okay. Now this delta H is nothing but this is the HFG, or latent heat of vaporization. Now for a fixed quantity of tonnage, here I can write on the left hand side it is 3.5167, which is equal to mass flow rate of the refrigerant, and this HFG goes on the denominator. Now you see it. Now what do you see? For a given quantity of the refrigerating effect, if the value of the HFG
goes on increasing, what will happen to the mass flow rate? That means the mass flow rate will go down. So that is what I mean to say in my lecture. And let me tell you, ammonia is the refrigerant for which the value of HFG is highest. Okay, so is it clear to you? Yes, sir. Okay. So this completes the chapter on the refrigerants. Sir, Okay. Yes. I have a doubt too. Yes. Yes. Ask. Sir, as you told us that the compressor pressure should be above atmospheric pressure, Mm-hmm. and we try to keep it as low as possible. Then Correct. what would happen if it go beyond the atmospheric pressure? See, normally, okay. I got your question. Okay. Let us see here. See. Just a minute. Okay. So this is the system actually. Once again, coming back to the same diagram. This is evaporator pressure. This is condenser pressure. This is 1. This is 2. Now, what happens? Suppose we are operating here at a evaporator pressure which is about 1.1 bar. Okay. Now this pressure in the condenser, this depends upon what? This depends upon actually the ambient temperature actually. Suppose if I am using say any refrigerant or 134A. Let us take an example. Okay. Now what happens? Now this is the ambient temperature, T ambient. Now higher this value, higher will be the condenser pressure. Okay, because there has to be a temperature difference of about 5 degrees. Okay, so this line from here to here, this is representing not only the constant pressure but also the constant temperature, which is also known as the condenser temperature. Okay, so basically condenser temperature is depending upon the ambient temperature. One thing. Now your question is why can't we go on for higher pressures, isn't it? Sir, means below the atmospheric pressure. Okay, if we go below the atmospheric pressure, what will happen in that particular case? Yes, sir. Okay, that's quite simple. See, actually, when we are talking about the going below the atmospheric pressure, in that particular case, this evaporator pressure PE will be less than P atmospheric, isn't it? So this value may be say 0.9 bar, whereas the atmospheric pressure is 1.01325 bar. Okay. Now what happens if there is some leakage in the refrigeration system? So what will happen? The air will go into the system from that leakage point because the air pressure is higher than the refrigerant pressure in the system at the evaporator actually. Okay, so you won't be able to know about the place where the leakage is taking place. So that is why we always want that the pressure of the evaporator should be positive, means it should be above the atmospheric pressure. This is the one of the things. Second is, suppose the evaporator pressure is low. Okay, अगर कम है तो क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर evaporator का लो जाएगा, what will happen to the specific volume at point number 1? Tell me, will it increase or decrease? जैसे Increase, pressure, sir. Increase specific होगा. volume will increase. Specific volume will increase. So that means, so
When the specific volume will increase, what is the unit of specific volume? It is meter cube per kg. So that means for the same mass flow rate, the volume will increase. Okay, so what you will do, what it will be, it will require a larger size of compressor for the same capacity. Larger size of compressor for same capacity. Capacity means cooling capacity. जितनी हमें कूलिंग करनी है उसके लिए हमें ज़्यादा बड़ा साइज चाहिए होगा। देखो इसका रीज़न सिंपल सा है। देखो अगर मैं पहले अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे पास 1 kg रेफ्रिजरेंट पर सेकंड फ्लो कर रहा था सिस्टम में, ठीक है, और उसके लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम थी, सपोज करो कि 0.2। ओके, तो 0.2 तो एक बहुत छोटी वैल्यू है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम क्या होगा? m इंटू वी। तो ये आ गई वैल्यू 1 इंटू 0.2। तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम जो है 0.2 मीटर क्यूब है। अगर कंप्रेसर का वॉल्यूम इतना है तो मुझे 1 kg मास फ्लो रेट मिल जाएगा। लेकिन अब अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ गया, ओके, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ गया और कंप्रेसर की वॉल्यूम इतनी ही है, मतलब 0.2 है m, और स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने कहा कि 0.2 की जगह 2 हो गया, तो मास फ्लो रेट कितना रह जाएगा? मास फ्लो रेट रह जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.1 kg पर सेकेंड। तो अब क्या हुआ? पहले मास फ्लो रेट 1 kg पर सेकेंड था, अब 0.1 kg पर सेकेंड रह गया। कंप्रेसर का साइज उतना ही है, सिर्फ किस वजह से? क्योंकि हमने जो है इवेपोरेटर का प्रेशर डाउन कर दिया, बिलो एम्बिएंट लेके, और जैसे ही एम्बिएंट से बिलो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ने से मास फ्लो रेट कम हो जाएगा। मास फ्लो रेट कम होने से क्या होगा? जब हम कूलिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे, कूलिंग कैपेसिटी क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कूलिंग कैपेसिटी जो है मास फ्लो रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, और HFG के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आपकी HFG ज़्यादा भी है तो मास फ्लो रेट कम हो गया तो कूलिंग कैपेसिटी डाउन चली जाएगी। और दिस इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। जैसे मैंने यहाँ पे अमोनिया के बारे में लिखा हुआ है, तो अमोनिया एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जिसके लिए HFG तो बहुत बढ़िया है, HFG बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बहुत हाई होती है। तो ये जो दोनों फैक्टर है ना, ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। मतलब HFG हाई होने की वजह से मास फ्लो रेट डाउन जाता है, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम इसकी बहुत ज़्यादा होने की वजह से मास फ्लो रेट इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो sorry, yes, it will also go down. Okay, so actually the capacity will go down in case of ammonia also. Okay, any other question? Or कोई question? Okay, if there is no question, then I will move to the next topic. The next topic is multi-pressure system. Okay, I would like to tell you. Yes, any questions? Sir, what is the meaning of charging of refrigerant? क्या बोला? Sir, what do you mean by charging of refrigerant? चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट। Yes, देखो, हाँ, हमें जो है सिस्टम के अंदर जब रेफ्रिजरेंट फिल करना होता है वो, तो उस प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ठीक है, sir. Okay, okay, sir. ओके। तो हम ऐसा करेंगे, अगले वीक में आप लोगों का टेस्ट लेना है, ठीक है, क्लास टेस्ट होगा आपका। तो थोड़ा सा डिसाइड कर लेना कि ये क्लास टेस्ट आपने जो है थर्सडे को रखना है या फ्राइडे को रखना है। ओके, तो वैसे तो दोनों दिन ही टेस्ट होगा, ये याद रख लेना, थर्सडे को भी होगा, फ्राइडे को भी होगा। एक में सरप्राइज टेस्ट होगा, एक में क्लास टेस्ट होगा। ओके, सो डिसाइड, अपने आप डिसाइड कर लो। अगले वीक में क्लासेस नहीं हो पाएंगी, दोनों दिन जो है आपका टेस्ट ही होगा। ओके, और कोई आपकी क्वेरीज होंगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो सिलेबस होगा आपके टेस्ट का वो रेफ्रिजरेंट तक ही होगा। ये जो मल्टी प्रेशर सिस्टम मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये उसका पार्ट नहीं होगा। ओके, ऑल राइट। सो सर मल्टी, बात पूछनी थी सर, वो क्लास टेस्ट मतलब और सरप्राइज टेस्ट मतलब वो एक दिन ही होगा या अलग अलग डेज में? देखो सरप्राइज टेस्ट तो सरप्राइज है। वो मैं सरप्राइज मैं तो कह ही नहीं रहा, मेरा कहना ये है कि मतलब फ्राइडे को ही लेना सर सही रहेगा, कंपेटेबल रहेगा, टाइम ज़्यादा होता है थोड़ा। चलो ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो एक ही दिन दे देना दोनों, थर्सडे को क्लास ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
ओके हाँ बाकी सर वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा ना, क्या चीज़, क्लास टेस्ट? टेस्ट, हाँ जो भी होगा मतलब। Mostly वैसे वो class test I am going for objective only, but there will be more calculation in that, not simple objective, because there may be more number of questions, about 30 questions may be there or 25 question for 1 hour. Okay, अभी तक तो 10 क्वेश्चन दिए थे, अब जो है 25 से 30 क्वेश्चंस हो गए 1 आवर के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, Okay. न्यूमेरिकल टाइप। हाँ, ए लिटिल बिट न्यूमेरिकल, ऐसा न्यूमेरिकल जो कि आप सॉल्व कर सको। ओके ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट use of a refrigeration table. अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको पहले ही बताऊंगा मैं। ओके, मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा। ऑलराइट, ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट मल्टी प्रेशर सिस्टम्स नाउ। इन केस ऑफ अभी से टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट ए सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम। सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम का मतलब है कि वी आर यूजिंग ओनली टू प्रेशर सिस्टम। टू प्रेशर सिस्टम का मतलब क्या है, एक इवेपोरेटर का प्रेशर है और दूसरा जो है कंडेंसर का प्रेशर है, और उनके बीच में उस प्रेशर को रेज करने के लिए एक कंप्रेसर लगा हुआ है, सिंगल कंप्रेसर लगा हुआ है। अब कई जगह पे ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है हमें जहाँ पे वी हैव टू गो फॉर ए मल्टी प्रेशर सिस्टम। अब मल्टी प्रेशर सिस्टम का मतलब है कि मोर देन टू प्रेशर्स आर देयर इन दिस सिस्टम, and when we have to go for more than two pressures in this system. Okay, that I am going to discuss now. Simple vapor compression system is a two pressure system. I have already told you. Systems with more than two pressures may arise either due to multi-stage, compound compression to minimize work, or due to feeding of the refrigerant to a multi-evaporator system. So let us focus here. See, multi-staging. I think you have studied about the compound compression process in air compressor. Okay, so you know why do we go for multi-staging or compound compression there. As you know, if the uh, uh, intake pressure or suction pressure is very low, whereas the discharge pressure is very high. For example, if we are taking the air from the surroundings, so its pressure is 1 bar, and if you have to raise it to a pressure of say 27 bar, okay, so it's very high pressure. So you cannot compress the air from 1 bar to 27 bar in a single stage. So what you will do, you will go for a multi-stage compression. Okay, so in that particular case you can have either two compressors or you can have either three compressors. Okay, so if you have two compressors, the intermediate pressure could be the geometric means. So as I told you, जैसे मैंने बताया ना अभी, एक प्रेशर अगर 1 बार है और दूसरा 27 बार है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लो। ज्योमेट्रिक मीन लेने से 27 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, इट वुड बी समवेयर अराउंड 5.1 और 5.2। तो इसका मतलब पहली स्टेज में प्रेशर जो है हम जो कंप्रेसर लगाएंगे वो प्रेशर रेज करेगा 1 से 5.1 तक, दूसरा जो रेज करेगा कंप्रेसर वो करेगा 5.1 से 27 तक। तो तकरीबन दोनों का जो प्रेशर रेशियो होगा ना वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टी स्टेज कंप्रेशन का एक तो ये एक रीज़न हो गया कि हमें ज़्यादा प्रेशर राइज करना पड़ रहा है। दूसरा क्या होता है कि हमें जब हम एक सिंगल स्टेज में वर्क कर रहे हैं तो वर्क जो होता है कंप्रेसर का वो काफ़ी ज़्यादा होता है अगर प्रेशर रेशियो बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए भी हमें कंपाउंड कंप्रेशन में जाना पड़ता है। एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि कई बार हमें क्या करना है, हमारे पास मल्टी इवेपोरेटर सिस्टम होते हैं। मल्टी इवेपोरेटर का क्या मतलब है कि एक इवेपोरेटर में टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, दूसरे इवेपोरेटर में टेम्परेचर है -15 डिग्री सेल्सियस, तीसरे इवेपोरेटर में टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस। So we have three evaporators which are operating at say 5 degree Celsius, minus say 20 degree Celsius, and the third one is operating at let us say -30 degree Celsius. So इसका मतलब ये हुआ -5 वाला हमें क्या देगा, -5 वाले इवेपोरेटर से हम एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। -20 वाला जो है इवेपोरेटर उसको हम
रेफ्रिजरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और -30 या -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है उसको हम कुछ कोल्ड व्हाट यू कॉल्ड क्विक फ्रीजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्विक फ्रीजिंग के लिए, ठीक है, क्विक फ्रीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इसका मतलब अगर एक टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रेशर होगा, -20 के कॉरस्पॉन्डिंग एक और प्रेशर होगा, -40 के कॉरस्पॉन्डिंग एक और प्रेशर होगा। 3 प्रेशर ये हो गए इवेपोरेटर में, और चौथा जो है कंडेंसर का प्रेशर। तो ये मल्टी इवेपोरेटर सिस्टम हो जाता है। आजकल जो आपके रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उसमें कुछ रेफ्रिजरेटर ऐसे हैं जिसमें मल्टी इवेपोरेटर सिस्टम है। तो मल्टी इवेपोरेटर में क्या है, उसमें 2 टेम्परेचर होते हैं। तो जहाँ पे आप वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करते हो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है। हाई इन द सेंस वहाँ पे हो सकता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री के आसपास हो। जहाँ पे फ्रीजर सेक्शन है वहाँ पे टेम्परेचर जो होगा इवेपोरेटर का वो -20 से -25 के डिग्री के बीच में होगा। तो उससे हमें एडवांटेज ये मिलता है। अब अभी आपको बताऊंगा एडवांटेज क्या होता है इसका। इसी तरह से एक होते हैं कैस्केड सिस्टम। कैस्केड सिस्टम के बारे में जब आप इसका डायग्राम देखोगे तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। ओके, सो now let us talk about multi-stage or compound compression. Multi-stage, as I told you, is a with interstage cooling is an effective method of reducing the work of compression on isentropic closer to the saturation पर। ओके, तो बेसिकली हम जब दो कंप्रेसर लगा रहे हैं तो बीच वाली जब पहली स्टेज से डिस्चार्ज हुआ, डिलीवरी हुई रेफ्रिजरेंट की, तो बीच में हम इंटरकूलिंग कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा एयर रेफ्रिजरेशन में भी, उसमें भी यही करते हैं। एयर पहले कंप्रेसर से जब बाहर निकलती है तो बीच में एक इंटरकूलर लगा होता है। तो वहाँ पे 2 तरह की इंटरकूलिंग हो सकती है, परफेक्ट इंटरकूलिंग और इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, जब हम रेफ्रिजरेंट ले रहे हैं तो बीच में इंटरकूलिंग कर सकते हैं। ओके, उस इंटरकूलिंग से एक तो वर्क ऑफ कंप्रेशन कम हो जाएगा, दूसरा जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, however it is desirable to employ compound compression only when pressure ratio between condenser and evaporator is greater than 4 or 5। ओके, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें मैंने बताया ही था कि जैसे 27 है हाईएस्ट प्रेशर और लोएस्ट प्रेशर 1 है, तो इंटरमीडिएट प्रेशर जो होगा स्क्वायर रूट होगा 1 और 27 का, और आई टोल्ड यू इट्स वैल्यू समवेयर अराउंड 5.1 और 5.2। सो इसीलिए जैसे ही 5 से ऊपर हो गया प्रेशर तो हमने जो है उसकी स्टेजिंग कर दी, 2 स्टेजेस में उसको कंप्रेस करा। दिस विल हैपन। अब ये प्रेशर रेशियो बढ़ क्यों रहा है, 2 रीजन से ये बढ़ सकता है। दिस विल हैपन आइदर एज ए रिजल्ट ऑफ हाई कंडेंसिंग टेम्परेचर और वेरी लो इवेपोरेटर टेम्परेचर। जैसे मान लिया जाए हम कहते हैं कि हमें जो इवेपोरेटर टेम्परेचर चाहिए -30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और सपोज समर का पीक का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। तो 45 डिग्री सेल्सियस अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है तो कंडेंसर टेम्परेचर कितना हो गया, कंडेंसर टेम्परेचर से 5 डिग्री ज़्यादा होगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कंडेंसर प्रेशर, और -30 के कॉरस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे इवेपोरेटर प्रेशर। सो देयर विल बी इट्स ए सॉर्ट ऑफ हाई टेम्परेचर लिफ्ट एप्लीकेशन। हाई टेम्परेचर लिफ्ट मीन्स हमें टेम्परेचर को -30 से -50 पे लेके जाना है, तो इट्स ए हाई टेम्परेचर लिफ्ट। और जब भी हाई टेम्परेचर लिफ्ट होगा तो प्रेशर रेशो इंक्रीज हो जाएगी। सो इसलिए हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं। मल्टी स्टेजिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन and also to increase the refrigerating capacity in high condensing temperature and or low evaporator temperature application। ओके, तो बेसिकली आपको एक सिंपल सा आइडिया दे दूं। जब हमने सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज़ करा था तो मैंने आपको इवेपोरेटर प्रेशर का इफेक्ट बताया था, इवेपोरेटर प्रेशर का इफेक्ट बताया था। तो आप उस टॉपिक को जब दोबारा रेफ़र करोगे ना, और उसमें ये कंसिडर करो कि इवेपोरेटर प्रेशर लो चला गया और कंडेंसर प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या क्या होता है। अगर उस टॉपिक को रेफर करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि कूलिंग कैपेसिटी जो है वो डाउन चली जाती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इवेपोरेटर प्रेशर होने से डाउन होने से
वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डाउन चली जाती है, मास फ्लो रेट रेफ्रिजरेंट का ये भी डाउन चला जाता है, और वर्क ऑफ कंप्रेसर जो है ये इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली यही वो सिचुएशन है जो कि हमें ये कहती है कि हमें मल्टी स्टेजिंग की तरफ जाना चाहिए। बट मल्टी स्टेजिंग के लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि जब प्रेशर रेशो 5 से ज़्यादा हो जाए तभी जो है हमें मल्टी स्टेजिंग की तरफ जाना चाहिए, उससे पहले कोई ज़रूरत नहीं है मल्टी स्टेजिंग में जाने की। ओके, तो अब मल्टी स्टेजिंग में भी कुछ मेथड्स होते हैं जो हमें एम्प्लॉय करने होते हैं। Those methods are basically, the one is two methods employed for cooling between stages are water intercooling and flash intercooling with flash gas removal. Okay, so I think I will only go for one method today because it otherwise it will not be it will be difficult for you to understand it actually. Okay, so let us see. So now I am going for flash gas removal. So first of all, you see the diagram directly. So what is the name of the topic? It is flash gas removal, and it is for compound compression actually. Is compound compression with flash gas removal. Okay, compound compression with flash gas removal. All right, so let us see the diagrams, then we will read the theory. So I am giving you 5 minutes. First of all, you see this particular diagram only. This is the schematic diagram with the flash gas removal. Just see it for 2-3 minutes. Okay, so now I will explain it. I have written certain things here. So basically you can see now, first of all, there are two compressors. Okay, on the right hand side there is the pH diagram of the cycle actually. Okay, first of all, let us try to understand what we are doing in this particular case. So one thing is clear, because we are using two compressors, that means it's a multi compression system or compound compression system. Okay, and the pressure ratio is more than 5. Okay, so that is why we are going for two compressors in the system. Now the name of the topic is, it is compound compression with flash gas removal. So first of all, we should understand what is flash gas. So while discussing about the vapor compression system, I have told you the process of flashing. Flashing, you know, I hope you remember what is flashing. Flashing means formation of the vapor in the expansion device.
So if you will see this diagram, pH diagram which I have just made, so at this particular point the refrigerant has certain dryness fraction. So here it was pure liquid, okay, saturated liquid, but at this particular point it has vapor plus liquid. So the formation of the vapor is known as flash. Okay, so that means this topic, the name is flash gas removal. So basically we would like to remove this flash gas before it goes into the evaporator. Okay, so let us start from state point number 6. So see the schematic diagram. Schematic diagram में देखो स्टेट पॉइंट 6 ये कहाँ से बाहर आ रहा है, ये कंडेंसर से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, ये बिल्कुल क्लियर है, सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। और प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर है पीसी। तो मैंने यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट की एक स्टेट यहाँ पे शो कर दी जो कि पॉइंट 6 से राइट हैंड साइड डायग्राम में शो हो रही है। सो इट इज़ द स्टेट एक्चुअली एट द एग्जिट फ्रॉम द कंडेंसर। अब हमने क्या करा, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रेफ्रिजरेंट है नीचे आया और यहाँ पे एक एक्सपेंशन वाल्व है। इस एक्सपेंशन वाल्व में जो टोटल रेफ्रिजरेंट था पूरा का पूरा, उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया अप टू स्टेट पॉइंट 7। और ये किस में जा रहा है, ये एक फ्लैश चैम्बर है। सो फ्लैश चैम्बर इट्स अ सॉर्ट ऑफ बॉक्स एक्चुअली, ओके, विच वुड बी, और ए कंटेनर एक्चुअली, जिसके अंदर मुझे रेफ्रिजरेंट को होल्ड करना है। और इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक फ्लोट वाल्व लगा हुआ है। जैसा कि आपके घर में जो वाटर टैंक होता है ना, उसमें एक फ्लोट वाल्व लगा होता है ताकि हम जो है वाटर का लेवल मेंटेन कर सकें। सिमिलरली इस फ्लैश चैम्बर के अंदर एक फ्लोट वाल्व लगा हुआ है जो कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट का लेवल मेंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब अब जब स्टेट पॉइंट 7 आएगा, जब एक्सपेंशन हुई एक्सपेंशन डिवाइस में, तो देखो हमने एक्सपेंशन कहाँ तक की है, हमने एक इंटरमीडिएट प्रेशर तक की है। ये इंटरमीडिएट प्रेशर क्या है, PI। So if this is PC, then this is PI, okay, and this is, let us say, PE, evaporator. So this is the pressure PI in the flash chamber. तो अब आप देखो 6 से 7 पे आया है, 6 से 7 पे, और 7 पे क्या हुआ है, 7 पे देखो अब फ्लैश चैम्बर के अंदर क्या है, लिक्विड भी है और वेपर भी है, और हमने एक जो है फ्लोट वाल्व लगा रखा है। तो जो वेपर होगा रेफ्रिजरेंट वो ऊपर रहेगा और जो लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा, बिकॉज लिक्विड इज हैवियर। सो हमने क्या किया, इसको यहाँ फ्लैश चैम्बर में से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। नीचे जो लिक्विड है यहाँ पे इसके x की वैल्यू क्या है, ये क्योंकि ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड है तो यहाँ पे x की वैल्यू है 0, और ये जो ऊपर वेपर है इसकी वैल्यू है x की 1। तो इसका मतलब ये जो रेफ्रिजरेंट 7 पे था ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, आप देखो जरा ध्यान से पीएच डायग्राम पे। ये 7 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे लिक्विड भी है और वेपर भी है, लेकिन मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए। एक पार्ट जो है इधर चला गया और स्टेट पॉइंट नंबर 3 पे पहुंच गया जो कि सैचुरेटेड वेपर है, और दूसरा पार्ट जो है पॉइंट नंबर 8 पे पहुंच गया जो कि सैचुरेटेड लिक्विड है। ऐसा करने का से हमें फ़ायदा क्या हुआ, इसको करने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारे को जो है अब नेक्स्ट स्टेज में जब रेफ्रिजरेंट ने जाना है इवेपोरेटर में, तो उसके अंदर से वेपर को हमने पहले ही निकाल दिया है बाहर। वेपर को निकालने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, वेपर को निकालने से ये फ़ायदा मिलेगा कि वो वेपर जब इवेपोरेटर में जाता है तो उससे कोई कूलिंग तो मिलनी ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है एक वेपर फॉर्म में। अगर लिक्विड होता तो उसके अंदर हम लेटेंट हीट प्रोवाइड करते तो वेपर में कन्वर्ट होता, तो कूलिंग मिलती। इस वेपर से हमें कोई कूलिंग नहीं मिल रही, इसलिए हमने उसको पहले ही बाहर निकाल लिया। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेज में देखो यहाँ फ्लैश चैम्बर से क्या निकल रहा है, फ्लैश चैम्बर से सीधा सीधा यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड निकल रहा है। मैंने अभी आपको बताया सैचुरेटेड लिक्विड के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है 0 है, ओके। तो ये 0.8 पे निकल रहा है, तो 0.8 से कहाँ पे गया, फिर हमने एक और एक्सपेंशन वाल्व लगाया हुआ है ये वाला, ओके, यहाँ पे एक्सपेंड किया। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो एक बार फिर से आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा। तो देखो यहाँ पे राइट साइड पे डायग्राम में, पीएच डायग्राम में ये रहा 8 to 9 प्रोसेस हो गया, ओके। अगर मैं एक सिंगल स्टेज में काम कर रहा होता
तो क्या करता मैं, सिंगल स्टेज में तो सीधी सीधी बात है, 6 से सीधा जो है मैं कहाँ पे आता, 10 पे आता। ओके, तो यहाँ पे फ्लैशिंग ज़्यादा होती, तो उस ज़्यादा फ्लैशिंग की वजह से जो कूलिंग इफेक्ट होता वो कम हो जाता, इतना मिलता कूलिंग इफेक्ट। अब जो है कूलिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट मुझे मिल रहा है 9 से 1 तक, थोड़ा ध्यान देना, 9 से 1 तक मुझे कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है 2 स्टेज में होने की वजह से। अगर 2 स्टेज नहीं होता तो मुझे कूलिंग इफेक्ट यहाँ 10 से लेकर 1 के बीच में मिलता। ओके, सो ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इवेपोरेटर में हमने जो प्रोडक्ट्स कूल करने हैं उनसे हीट ली, ये मेरे को QE मिल गया, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। यहाँ पे स्टेट पॉइंट 1 है, स्टेट पॉइंट 1 क्या है, इट इज सैचुरेटेड वेपर। ये देखो, ये सैचुरेटेड वेपर पीएच डायग्राम में शो हो रहा है यहाँ पे। ओके, इसको क्या किया, इसके बाद हमारे पास है एक लो प्रेशर कंप्रेसर। लो प्रेशर कंप्रेसर में मैंने इसको कंप्रेस करा 0.2 पे। ओके, 0.2 पे इसको कंप्रेस कर दिया। तो अब देखो ये कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है जो फ्लैश चैम्बर के अंदर वेपर था उससे जो निकल रहा था उसके साथ यहाँ पे जाके मिल गया। ओके, अब देखना जरा ध्यान से पीएच डायग्राम पे, 0.2 जो है राइट साइड पे है और 0.3 जो है लेफ्ट साइड पे है। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो 0.4 कहाँ पे आएगा, वो आएगा 2 और 3 के बीच में, तो ये पॉइंट नंबर 4 आ गया। तो ये अगर पॉइंट नंबर 4 आ गया तो इसका मतलब जो सेकंड कंप्रेसर है उसमें जो एंट्री की स्टेट है वो उसकी सुपर हीट जो है डिक्रीज हो गई है। अगर हम सीधा 2 से जाते तो सुपर हीट ज़्यादा होती। तो बेसिकली अगर मैं एक सिंगल स्टेज फॉलो कर रहा होता तो प्रोसेस ऐसे जाता, इस तरह से। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क है ये एक तरह से मैंने यहाँ पे कूलिंग कर दिया है इस रेफ्रिजरेंट का। जो 2 पे रेफ्रिजरेंट आ रहा था सुपर हीटेड, मैंने उसको 3 से और जो है थोड़ा सा कूल कर दिया और वो पॉइंट नंबर 4 पे पहुँच गया। तो इसलिए जो है कुछ इस कूलिंग की वजह से जो कंप्रेसर वर्क है वो भी रिड्यूस हो गया। ओके, तो इसके बाद हाई प्रेशर कंप्रेसर में उसको कंप्रेस कर दिया स्टेट पॉइंट 5 तक, और उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टेट पॉइंट 5 जो है सुपर हीटेड है, तो यहाँ से ये डिस्चार्ज हो गया एंड देन इट गोज इनटू द कंडेंसर। ओके, वेयर द हीट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। सो टी एम्बिएंट को इस कंडेंसर ने हीट रिजेक्ट कर दी, क्योंकि कंडेंसर का टेम्परेचर कितना है, TC है, और TC जो है इट इज़ ग्रेटर देन टी एम्बिएंट। ओके, तो ये इसमें ऐसा काम हो गया इसके अंदर। अब बताओ ये क्लियर है या कोई पॉइंट है तो पूछ लो। सर इसमें सर ये जो 7 और 3, 7 से 3 में जो जा रहा है सर, ये इसका समझ नहीं आया, मतलब कि इसमें इंथैल्पी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। ओके, मैं बताता हूँ अभी ये देखो, ये डायग्राम है। सी यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, 7 पॉइंट के बारे में बात करें। देखो 7 पॉइंट पे क्या है, अच्छा 0.6 पे क्या था, यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी। ठीक है, x की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, इट इज सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, मान लिया जाए, मैं अब मान के चलता हूँ कि इसका मास जो है इस पॉइंट पे 1 kg है। ठीक है, अब यहाँ से एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन डिवाइस में हम पहुँच गए पॉइंट नंबर 7 पे। अब यहाँ पे सपोज करो x7 की वैल्यू है सपोज 0.1। अब इस 0.1 का मतलब क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। 0.1 का मतलब है x7 is equal to 0.1 which is equal to mass of vapor refrigerant divided by mass of vapor plus mass of liquid। ओके, अब ये बताओ मुझे नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ये टोटल कितना है, मास ऑफ वेपर और मास ऑफ लिक्विड कितना है, 1 kg। सो ये रहा मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 kg। तो जरा 1 kg पुट करो तो कितना आया मास ऑफ वेपर, 0.1 kg 0.1 kg, और मास ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा,
0.9 kg। 0.9 kg। तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि जो 0.7 पे रेफ्रिजरेंट है उसके दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? जिसमें सैचुरेटेड वेपर कितना है? 0.1 kg। मतलब इसकी वैल्यू जो है, इसके लिए x की वैल्यू 1 है और इसके लिए x की वैल्यू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है वो यहाँ पे नहीं है। अगर मैं सिर्फ लिक्विड कहता हूँ तो लिक्विड का ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 होता है। तो मतलब लिक्विड यहाँ पे है जिसकी वैल्यू है 0.9 और वेपर यहाँ पे है जिसकी वैल्यू है 0.1। तभी तो जो है इन दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो स्टेट 7 बन रही है जहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.1 है। ओके, आई थिंक ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होना चाहिए, तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो भी किया है। यही डायग्राम था, पीएच डायग्राम था जो पीछे था। देखो अगर हम एक सिंगल स्टेज में जाते तो कैसे जाते? सिंगल स्टेज में ऐसे जाते, यूँ जाते 1 से A तक, फिर A से आते हम यहाँ पे 6 पे और 6 से आते हम 10 पे। ओके, और 10 से हम जाते 1 पे। तो ये सिंगल स्टेज होती। ओके, और सिंगल स्टेज में आप देख सकते हो इवेपोरेटर में एंट्री कहाँ पे है? 10 पे है। एग्जिट कहाँ पे है? 1 पे है। तो सिंगल स्टेज में जो है हमें कंप्रेसर वर्क जो है कंप्रेसर में एंट्री 1 पे है और एग्जिट जो है पॉइंट ए पे है। तो देखो इसमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है कम है और कंप्रेसर वर्क ज़्यादा है, तो सीओपी कम है इसकी। जबकि दूसरे केस में क्या हुआ, तुम अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो डिफरेंट, ये जो अगर मैं स्पेसिफिक वर्क निकालता, ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू जो सेकंड स्टेज में आई है। ओके, तो बेसिकली दो स्टेज में कंप्रेशन करने से जो कंप्रेसर का वर्क होता है वो कम हो जाता है। एक तो कंप्रेसर वर्क कम हो गया, नंबर 1। दूसरा क्या हो गया? दूसरा जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है मल्टी स्टेज में यहाँ से यहाँ तक मिल गया मेरे को, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो नेचुरली है जब स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ गया और कंप्रेसर वर्क कम हो गया तो सीओपी क्या होगा? सीओपी बढ़ जाएगा। ओके, हाँ सर ये जो 0.7 से 0.3 एंथैल्पी चेंज होती है सर, जिसके लिए इसको हीट मिलती है सर, वो सेक्शन लाइन से मिली? अरे सेक्शन लाइन से सर थोड़ी विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज तो आई थिंक। अरे टेम्परेचर इंक्रीज थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे 8 से 3 के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसा है, तुम्हें ना थोड़ा सा, व्हाट इज योर नेम? गजानन गुप्ता हैं? सर। गजानन गुप्ता सर। अच्छा, गजानंद गुप्ता। तुमने जो है वो नहीं पढ़ा हुआ स्टीम वाला पार्ट? स्टीम का चैप्टर पढ़ा है कोई? थोड़ा सा इसको ऐसा करो, अभी इसको ऐसे रहने दो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तुम्हें समझ में नहीं आता तो फिर तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा मैं दोबारा। ओके, फादर टाइमिंग, अभी इसको ऐसे रहने दो। ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब क्या है? अब सर मेरा एक डाउट है। बताओ। सर जो 424 आया है लाइन, वो मतलब इंटरकूलिंग हो गई एक तरह से। हाँ, 2 to 4 जो आया है, मतलब वो कूल कैसे, हाँ ये कैसे हुआ है? ये देखो ना भाई, ये जो है 2 पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 है। अब मुझे एक चीज बताओ। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब तुम क्वेश्चन बताओ मेरा। तुम सर्दियों में पानी गर्म करते हो नहाने के लिए? यस सर। नहाने के लिए, ठीक है ना? यस सर। और क्या होता है कि पानी तुम गीजर में गर्म करते हो, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो उसको तुमने बाल्टी में डाल लिया, उसके बाद तुम उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हो? ठंडा पानी खोल देते हो। तो ठंडे पानी का टेम्परेचर तो है 4 डिग्री सेल्सियस और गर्म पानी का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। और तुम्हें पानी जब मिक्स कर देते हो तो किस टेम्परेचर में मिलता है? इंटरमीडिएट टेम्परेचर में मिल जाता है, 30-35 के आसपास या 40 के, 30-35 के आसपास मिल जाता है कम ना? हो जाता है। तो कम नहीं हो जाता, 70 वाला कम हो जाता है और 4 वाला बढ़ जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, देखो टेम्परेचर लाइन ऐसे जा रही है, ये टेम्परेचर लाइंस हैं। ओके, ये टेम्परेचर लाइन है। तो 2 पे टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा है, टेम्परेचर है T2 ये है, ये टेम्परेचर T4 है, और ये टेम्परेचर T3 है, और T3 जो है सबसे कम टेम्परेचर है, T4 जो है T2 से कम है। तो जब हम एक रेफ्रिजरेंट T2 पे है जो कि मैंने मान लिया कि 70 है, और एक रेफ्रिजरेंट जो है T3 पे है जो कि 20 है, तो मुझे T4 जो मिलेगा 20 और 70 के बीच में ही तो मिलेगा ना, तो ये हो सकता है ये 40 हो गया। तो ये हो रहा है, ऐसे मिक्सिंग करने से ये हमें टेम्परेचर जो है 4 पॉइंट बीच में मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ओके, तो सर बट टेम्परेचर कम हुआ, प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ सर वहाँ पे। देखो ये आइडियल साइकिल है, अभी हम यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कंसीडर नहीं कर रहे। जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, कोई एक थ्योरेटिकल सिस्टम पढ़ते हैं, तो हम उसको पहले आइडियली पढ़ते हैं, आइडियल केस पढ़ते हैं उसका। तो यहाँ पे हम कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं पढ़ रहे, कोई हम ये नहीं कंसीडर कर रहे कि पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन हो रहा है, हम वही समझ रहे हैं कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं है, बाहर से कोई हीट नहीं आ रही है सिस्टम में। ठीक है, इस तरह से मतलब हमें आइडियल चीज़ें लेके चलना है स्टार्टिंग में। जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम करेंगे तो एक्चुअल प्रॉब्लम में तो बहुत कुछ हो सकता है, कुछ भी उसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी? थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हो ना? यस सर। हाँ, तो रिवर्सिबल प्रोसेस कभी होता है? नो सर। कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हो जाता तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम आज की डेट में ना इफ़ योर एज आज 3rd ईयर में हो ना, तो हो सकता है कि आप लोगों की एज इस टाइम पे 20, 21 या 19 के आसपास होगी सबकी। तो अगर रिवर्सिबल होता तो आप दोबारा से बच्चे बन सकते थे, क्यों नहीं, कि नहीं? तो देन इट वुड हैव बीन वेरी गुड है। तो बैक चले जाते और जो आपको प्रॉपर डिग्री थी बीटेक की डे टाइम में कर लेते। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। ओके, ऑल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, तो हम उनको रिवर्सिबल मान के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, यस सर। let us see it now. Now what I have given here is I have shown the analysis of the system. अब देखो इसमें मैंने कुछ मास फ्लो रेट्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं। मास फ्लो रेट क्या क्या रिप्रेजेंट किए हैं? देखो, जो इवेपोरेटर में से मास जा रहा है वो है mr। ओके, mr, तो यही मास जो है इवेपोरेटर से निकल के कंप्रेसर से पास होगा, तो ये mr है। दिस मास फ्लो रेट इज mr। ओके, और यहाँ पे जो मास आ रहा है जो कि फ्लैश चैम्बर से बाहर आ रहा है, इट्स वैल्यू इज mr1। ओके, इट इज mr1 विद ए डॉट ओवर इट्स हेड। यहाँ पे डॉट भी लगा हुआ है। डॉट लगाने का मतलब पता है आप लोगों को? किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डॉट कब लगाते हैं? रेट। Yes, sir. रेट क्वांटिटी जब भी होती है उसके लिए हम डॉट लगाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 देखो, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पे क्या हो रहा है? पॉइंट नंबर 4 पे mr और mr1 मिक्स हो रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या मिल रहा है हमें? mr2 मिल रहा है। तो mr2 क्या है? mr2 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू mr प्लस mr1। ये हो गया। तो इसका मतलब जो हाई प्रेशर कंप्रेसर है, ये हाई प्रेशर कंप्रेसर है। ओके, HPC, HPC stands for high pressure compressor and LPC stands for low pressure compressor। तो हाई प्रेशर कंप्रेसर में ज़्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में कम रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो हमें इसका अब COP कैलकुलेट करना है। अब COP कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, हमें कुछ ना कुछ जो है गिवन होगा। गिवन क्या होगा? हमें ये पता होगा कि हमें ये सिस्टम जो है कितने टन के लिए डिज़ाइन करना है। सपोज यहाँ पे मुझे दे रखा है कि ये 30 किलोवाट के लिए इसका COP कैलकुलेट करो, इसकी कंप्रेसर की पावर कैलकुलेट करो। तो अगर मुझे ये 30 दे रखा है तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास ये फार्मूला है, टोटल रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू एंथैल्पी डिफरेंस। अब ये एंथैल्पी डिफरेंस कौन सा लेंगे? ओके, ये देखो, ये क्या है? H1 है, ये एग्जिट है इवेपोरेटर का, H9 जो है इवेपोरेटर का इनलेट है, और 8 और 9 पे एंथैल्पी बराबर है।
तो देखो यहाँ पे मैंने वैसे तो गलती से 8 लिख दिया था, 8 9 में कोई फर्क नहीं है, 8 लिख लो या 9 लिख लो। ओके, सो मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इनटू H1 माइनस H9 या H1 माइनस H8, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब देखो, अगर हमें यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी पता है 30 है, तो इसका मतलब मुझे ये चीज़ पता है H1। देखो H1 क्या होगा, H1 क्या है, अगर मुझे यहाँ पे इवेपोरेटर का प्रेशर पता है तो यहाँ पे मुझे H1 की वैल्यू भी पता लग जाएगी टेबल से या चार्ट से। जो H1 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी दिस विल बी Hg कॉरस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 1। अभी आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाने हैं, मैंने वो भी करवाए नहीं हैं। तो ये H1 हमें पता है, इसी तरह से H8 या H9 भी पता है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट प्रेशर की वैल्यू भी दी होगी। दिस इज इंटरमीडिएट प्रेशर, यहाँ पे हमें ये वैल्यू पता है PI की। ओके, ये जो PI है ये हमें प्रॉब्लम में दिया होगा, तो ये जो है हमें वैल्यू पता है। तो इसका मतलब हमें H1 भी पता है और H8 भी पता है। जब ये दोनों पता है तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे मास फ्लो रेट MR मिल जाएगा। तो अगर मास फ्लो रेट मिल गया तो मैं जो LPC है या लो प्रेशर कंप्रेसर है उसकी पावर निकाल सकता हूँ। कैसे, मास फ्लो रेट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा H2 माइनस H1 से। H2 माइनस H1 कैसे, ये देखो, ये कंप्रेसर का एंट्री पॉइंट है, पीएच डायग्राम में देखो, और ये कंप्रेसर का, लो प्रेशर कंप्रेसर का एग्जिट पॉइंट है। तो बेसिकली हमें H2 भी पता है और H1 भी पता है। H2 और H1 अगर मेरे को दोनों पता हैं तो मैं यहाँ से जो पहला कंप्रेसर है लो प्रेशर कंप्रेसर, उसका वर्क मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसके बाद दूसरे कंप्रेसर का वर्क कैलकुलेट करने के लिए मुझे MR2 की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे कंप्रेसर में जो मास फ्लो रेट है वो MR2 है, ये मास फ्लो रेट है, ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, MR तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन मेरे पास MR1 नहीं है, MR1 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, इट इज़ अननोन। ठीक है, MR1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास ये एक फ्लैश चैम्बर है। ओके, मैं यहाँ पे एनर्जी बैलेंस लगाता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखना, ये है एनर्जी बैलेंस एट दी फ्लैश चैम्बर। अब देखो यहाँ पे 7 पॉइंट पे देखो, ये जो है 5 पॉइंट से कितना मास फ्लो रेट निकला, MR2 निकला। यहाँ पे भी MR2 गया, यहाँ पे MR2 भी आ रहा है। ओके, इस वॉल्व में भी MR2 जा रहा है, और यहाँ पे फ्लैश चैम्बर में भी MR2 जा रहा है, और यहाँ पे पॉइंट नंबर कौन सा है, 7 है। तो इससे 7 पे एंथैल्पी हमें पता है, जो कि 6 के बराबर है। 6 पे एंथैल्पी कैसे निकलेगी, कंडेंसर प्रेशर से, ये हमें पता है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो H6 हमें नोन है, दिस H6 इज नोन टू अस। तो H6 और H7 बराबर हैं, क्योंकि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। तो मैंने क्या लगाया, एनर्जी जो एंटर कर रही है फ्लैश चैम्बर में उसकी वैल्यू है MR2 इंटू H7, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय एंथैल्पी। मास फ्लो रेट है MR2 इंटू H7। अब जो बाहर निकल रही है एनर्जी, उसके भी दो पार्ट हैं, एक है मास फ्लो रेट 1, उसके साथ है एंथैल्पी H3। ओके, तो MR1 इंटू H3। दूसरा जो है पॉइंट नंबर 8 पे लिक्विड निकल रहा है, वो कितना मास फ्लो रेट है, वो है MR, और किस पॉइंट पे निकल रहा है, 8 पॉइंट पे निकल रहा है, तो वहाँ की एंथैल्पी ले लो, उसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक मास फ्लो रेट है, दो मास फ्लो रेट है रादर, जो कि अननोन है। एक तो MR2 हमें नहीं पता, एक MR1 नहीं पता, लेकिन हमें MR की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये हमें नोन है। एंथैल्पी H3 पता है, H8 पता है और H7 पता है। ओके, और MR1 और MR2 के बीच में एक और इक्वेशन पता है, वो है ये रही, MR2 इज इक्वल टू MR1 प्लस MR, और इसमें हमें MR पता है, और ये अननोन है, ये भी अननोन है, और यहाँ पे ये अननोन है MR2, और यहाँ पे ये MR1 अननोन है। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें MR2 की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें MR2 की वैल्यू मिल गई तो हम दूसरा जो कंप्रेसर है, हाई प्रेशर कंप्रेसर, उसका वर्क निकाल सकते हैं। ये रहा उसका वर्क, क्या हो गया, MR2 एंट्री पॉइंट क्या है कंप्रेसर 2 का, H4, एग्जिट कहाँ पे, H5 पे। तो
एंथैल्पी डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया मास फ्लो रेट को, तो दूसरे कंप्रेसर की पावर हमें मिल गई। और अब सीओपी कैलकुलेट करनी है, तो सीओपी क्या होगा, ये टोटल रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी पहले कंप्रेसर का वर्क प्लस में दूसरे कंप्रेसर का वर्क। ओके, तो इसको देख लो ध्यान से, अगर कोई चीज़ अभी समझ में नहीं आई तो पूछ लो, क्योंकि ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। और हाँ बताओ। टफ सा लग रहा है थोड़ा। ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तो टफ लगेगा ही, इसमें कैलकुलेशन पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। बट थ्योरेटिकली आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम पता होना चाहिए कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है। ठीक है, टफ तो है, थोड़ा सा टफ है, नो डाउट अबाउट इट। ओके, लेकिन इसको, इस लेक्चर को आप एक बार फिर से सुनना, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, तो फिर जो है तुम्हें नहीं समझ में आता कुछ तो फिर दोबारा समझाऊंगा। इसके बाद अभी 2 टॉपिक हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। इसके बाद एक ये सिस्टम है, कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा इसमें। ओके, इसके बाद एक और सिस्टम है, वो ये है। तो ये एक सिस्टम ये है, और एक कैस्केड सिस्टम है। ये 3 सिस्टम है जो आपको थोड़ा पढ़ाने हैं मैंने। और एक चीज़ थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। अच्छा, अभी जो हम कह रहे थे ना कि यहाँ पे हमने मल्टी स्टेजिंग करी है, तो मल्टी स्टेजिंग में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये इंटरमीडिएट प्रेशर, ये इंटरमीडिएट प्रेशर अगर आपने प्रॉपरली चूज़ नहीं करा तो जो वर्क जितना कम होना चाहिए मल्टी स्टेज में उतना कम नहीं होगा। तो इस पी की वैल्यू जो होती है, आपको अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले फार्मूला, दिस शुड बी इक्वल टू पी सी इंटू पी का ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो अगर हम ये वैल्यू लेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर की, तो सबसे ज़्यादा जो है हमें बेनिफिट मिलेगा वर्क ऑफ कंप्रेसर में, मतलब वर्क ऑफ कंप्रेसर काफ़ी कम होगा। अदरवाइज अगर हम आर्बिट्ररली कोई प्रेशर चूज करेंगे तो उस केस में वर्क ऑफ कंप्रेसर उतना कम नहीं होगा और सीओपी भी उतना इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो